वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। सतगुर ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਗਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੀਂਹ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਇਮਾਰਤ ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣੀ? ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਡਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੁਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਨੇਕ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੋਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਗਮਨ, ਖੇੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਗੁਲਾਬ, ਅੰਬਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਣ ਲੱਗੀ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਐਸੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਨ 1701 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਬਤ 1758 ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਨ 1701 ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਬਤ 1758 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੱਲਾ, ਬਨੌਟੀ ਹਮਲਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਚੇਤਵਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਲੜਾਈ। ਪੈਦਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਬਨੌਟੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਲੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਹੋਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਹਮਲਾ,
ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਏ ਹਮਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਬ ਜਟਮੀ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਯੋਗਤਾ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੜੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਂ ਖੋਹਾ ਖਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮौज ਮੇਲਾ बनता रहता सी। आज हमारे बने फाक प्रभ संगी मिलन खेलन ला 1180 अंक दे उत्ते होली बारे भी लिखा होया। होली कीनी संत से रंग लागा अत लाल देव। तो जे होले का मतलब सीगा कि हमला करना और महला सीगा हमला। सो ये सानू इन्ना नहीं ज्यादा डिटेल पता, लेकिन मेन उन्होंने मकसद यही सीगा कि सारे शस्त्रां बारे पता लगे। उन्होंने एक शस्त्र माला भी पूरी लिखी सी, विद्या लिखी सी, ताकि सारे ताकत भी होनी चाहिए है, नाल सहज भी होना चाहिए है, नाल संतोख भी होनी चाहिए है। सो इस तरह इन्होंने होला महला शुरू किया सी होली की जगह ते। इन्होंने अपने सारे ही त्योहार इस तरह किए जो मैं शुरू च दसे ने कि विसाखी क्यों मनाई हैगी है और किस तरह चरण पौल की जगह ते ने ठंडे बाटे का अमृत छकाया वै। इस तरह होली नूं इन्होंने चेंज किया वै। तो हुण असीं सिर्फ होली जिहड़ी हैगी है सिर्फ निहंगां दे कोलों ही देख सकते हैं, बाकी तो सारे ने खत्म कर दिता। किसी ने तो शस्त्रां दे नाम भी नहीं पता कि किहड़े किहड़े शस्त्र हैगे ने, किहड़े किहड़े नहीं है। जो केसगढ़ साहब जाओ उस टाइम किरपा दे कड़छा पिया वै जां होर चीज़ां पईयां होईयां इन्हां ने लिया के बेचारे रखियां, लेकिन कोई एक बारी देखने वाले भी तैयार नहीं है। बस मत्था टेकदी है तो गुरुद्वारे चो वापस आ जाते हैं। सो इत्थे हुण सारे भैन भरा बैठे हुए ने, मेरी यही रिक्वेस्ट है भी जिथे भी तुसीं जाओ उस गुरुद्वारे का इतिहास से कम से कम करके अपने बच्चों को तुसीं दिखाओ और उहदे देखो कि कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े केस पे हुए ने। जिहड़ी भी जगह ते हुण असीं इत्थे गुरुद्वारे देखण गए सीगे, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि कित्थे हथियार पे ने, कित्थे शस्त्र पे ने, लोग चोरी करके ले जाते हैं। सो तुसीं हमला मारो, आप ही तुहानूं हमला मारना पएगा। ना तो साडे किसी वड्डे वडेरिਆਂ ने करना हुण ते ना ही साडे जिहड़े सरकारी महकमे वाले उन्होंने करना है ਜਾਂ कोई होर है गुरुद्वारे वाले ने नहीं करना वै। सब एक बार चक्कर लाते हैं तो वापस आ जाते हैं। एटलीस्ट तुसीं देखो गुरुद्वारे भी देखो, होली मनाते हैं अपनी जिस तरह गुरु साहब ने किया होया उस विरासत को असीं संभाल के रखिए, तां ही साडी जिंदगी दे विच अगे असीं वध सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है बहुत छोटा जिहा जिहड़ा मनदीप भैन जी ने मैनूं पुछया सीगा कि ब्रह्मदास कौन सी। ब्रह्मदास किरपा राम जी इन्हां दा परपोता सीगा। उहदे बारे मैं थोड़ा जिहा बस दसांगी, फिर गुरु तेग बहादुर जी बारे दसांगी। संबत 1573 तो 1575 तक तीजी उदासी उत्तराखंड की यात्रा की श्री गुरु नानक देव जी ने। उदासी के समय श्री गुरु नानक देव जी जम्मू के राह कश्मीर विच जा दाखिल हुए ते मटन पहुंचे अते मारतन चश्मे दे जा टिके। उत्थे पंडित ब्रह्मदास मिलिया। ये पंडित बहुत ही विद्वान सी। धर्म पुस्तकां दीयां 2 लद्दां उसदे नाल सी। साधुआं पंडितां दे विद्वानां दे नाल चर्चा करके उन्हां नूं हराना उसनूं बहुत ही चंगा लगदा सी। उसने गुरु नानक देव जी दे नाल भी चर्चा आ छेड़ी पर हार गया। गुरु जी दे बचन सुन के उसके मन नूं शांति आई तो गुरु जी का सिख बनिया। उसने 10 नौआं की किरत करनी, नाम जपन ते जपाउणा, लोकां नूं विद्या दान दे के खुले गफे बरताउने ते अपनी किरत कमाई विचों लोड़वंदां दीयां लोड़ां पूरीआं करन दा प्रण कर लिया अते सच्चे धर्म का जीवन गुजारना शुरू कर दिता।
गुरु जी ने सिक्खी प्रचार का काम कश्मीर विच ब्रह्मदास नूं सौंपिया। ब्रह्मदास का प्रपोता सी किरपा राम, जो आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी के पास फरियाद लैके आया सीगा। किरपा राम का वंश जिहड़ा सीगा वंश ठाकर का गुरु नानक पातशाह के श्रद्धालु सिख ब्रह्मदास के प्रपोते किरपा राम। ब्रह्मदास का जो बेटा सी नारायण दास, नारायण दास का बेटा अड़ू राम और अड़ू राम का बेटा किरपा राम। तो पट बही मुल्तानी सिंधी विच भी इसी तरह रूपमान किया गया है। भाई किरपा राम जी बेटा अड़ू राम, पोता नारायण दास का, पड़पोता ब्रह्मदास का, वंश ठाकर का, दत्त गोत्रा। मजाल ब्राह्मण वासी मटन देश कश्मीर संबत 1732 जेठ मासे सुधी काशी में फरियाद की गुरु तेग बहादुर जी नूं। गुरु जी ने एक तीरे दे वचन होया, तुसा की रक्षा बाबा नानक ही करेगा। इन्हां दे आनंदपुर साहब विच गुरु तेग बहादुर जी दे बोल सीगे किरपा राम नूं। ब्राह्मणों की इस फरियाद के समय गुरु जी ने देखा कि बेटा गुरु गोबिंद सिंह जी आए हैं, ये सारे ही गंभीर बैठे हुए हैं। गुरु जी ने पंडितां दी विथया सुनी, ये वचन किया कि इन्हां दे बचाव लई किसी महापुरख की कुर्बानी लाजमी है। ते साहबजादे ने कहा कि आप तो बद जोग महापुरख कौन है हो सकता है। कश्मीरी पंडितां नूं कहा कि वह सूबेदार नूं कह देन कि साडा गुरु गुरु तेग बहादुर जी है, पहला उसनूं इस्लाम कबूलण लई मना लवो, असीं भी इस्लाम कबूल कर लवांगे। सो ये सुन के किरपा राम बड़ा खुश होया और अपने सारे जत्थे नूं लैके वापस कश्मीर चला गया और जाके उस तो बाद ही गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई सी। सो जो मैं कल सानू सुनाया सीगा, गुरु तेग बहादुर जी ने दो तीन चीज़ों ना मैं भुल गई सी। एक मक्खन शाह दा क्योंकि सारे नूं साखी आंदी है, और दूसरा मैं दस्सिया सीगा कि किस तरह गुरु तेग बहादुर जी सामने तिन्हां ने सतीदास, मतीदास और दयाला जी की शहीदी हुई सी। मैं कहा चलो ये शहीदी सारे नूं पता हैगी है, पर फिर भी मैं आज थोड़ा जिहा दस दिंदी हां। साडा इतिहास, साडा विरसा, इतिहास इच प्लस हास संस्कृत का शब्द है जिसके अर्थ हैं किसी पुरुष, देश, कौम आदि नाल संबंधित बीत चुके वाकियात के संग्रह का नाम इतिहास हुंदा है। इतिहास कौमां की हालत का जनाजा, अगलियां नस्लां लई राह दिखाउण वाला चानन मुनारा ते दुनिया के परिवर्तन का सही सही नक्शा हुंदा है। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी ते दयाला जी की शहीदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के सामने चांदनी चौक फुआरे वाली जगह ते हुई सी। गुरु तेग बहादुर जी के नाल जिस ये रोपड़ तो चले है और रोपड़ के जिहड़ा बस्सी पठाना जिहड़ी जगह हैगी है उत्थे कचहरी च रखा गया सी। इन्हां दे नाल पंज मुखी सन, भाई उदय जी, भाई गुरजिता जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी ते भाई दयाला जी। सो सब तो पहला गुरु जी ने भाई उदय और भाई गुरजिता जी नूं कह दिता सी कि वह दिल्ली विच ही रहन। गुरु जी के सामने ही चांदनी चौक फुआरे वाली जगह से सारियां दी शहीदी हुई है, क्योंकि बाबा गुरजिता जी नूं इन्हां ने अपना नारियल ते नाल होर चीज़ां भेज के ते नाल कहा सीगा कि गुरियाई तुसीं जाके आनंदपुर साहब छोटे साहबजादियां नूं दे दो और उस तो बाद तुसीं आप आ जाना। सो भाई मतीदास जी अते भाई सतीदास जी दोनों ही भरा सन। ये भाई पिरागा जी के वंश विचों सन। भाई पिरागा जी के फादर भाई गौतम जी, उन्होंने बेटे भाई पिरागा जी के लखीदास जी, हीरानंद जी, इन्हां दे दो बेटे सन मतीदास जी ते सतीदास जी। भाई पिरागा जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी वालों 1606 ईस्वी नूं अकाल तखत तो हुक्मनामे भेजे। भाई पिरागा जी सब तो पहला हरमंदर साहब पुजे सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने संगतां नूं संबोधन करदिआं दस्सिया सी कि जदों जुल्म अते सितम की अत हो जाए तो जागियां कौमां लई हथियारबंद होना लाजमी हो जाता है। इसलिए हुण समा हथियारबंद होने का आ गया है, क्योंकि पंचम पातशाह की शहादत के नाल मुगलों के पत्थर दिलों से कोई फर्क नहीं पिया। भाई मतीदास जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय गुरु घर के दीवान नियुक्त किए गए सन। भाई सतीदास जी नूं गुरु घर की लिखारी वजों सेवा सौंपी गई सी। गुरु जी बचन उतारते ने, भाई सतीदास जी उन्होंने फारसी अखरां में उतार लेंदे, फिर उन्होंने पंजाबी अखरां लिख के पोथियां में दर्ज कर लेंदे। भाई केसर सिंह सिंगर दिल्ली हैं कि बानी जो साहिब करन उचार, सो सतीदास नित करे फारसी अखरां विच उतार। सो काजी ने दिल्ली के जिहड़ा कोतवाली सीगी उस जगह के उत्ते दो तख्तियां विच बन के आरे नाल शहीद कर देने का हुक्म दिता। जब शहीद किया गया तो जपजी साहब का पाठ कर रहे सन।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ श्री गुरु तेग बहादुर जी के पिंजरे वाल सी। भाई मती दास जी नूं मगर सुदी पंचमी 1732 बिक्रमी नवंबर 1675 ईस्वी विच शहीद किया गया। हुण इसका नाम भाई मती दास चौक है। इस स्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंडरग्राउंड पार्किंग बिल्कुल सामने है। इन्हां दे 3 पुत्र सन, साहिब सिंह जी, मुकंद जी, चरण सिंह जी। साहिब सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी का कारवारी दीवान सी और 7 कतक 1757 बिक्रमी नूं निरमोहकर दी जंग विच शहीद होए सन। मती दास जी का दूसरा बेटा मुकंद सिंह चमकौर की गढ़ी भी शहीद होए सन। तीसरा बेटा चरण सिंह शहीद नहीं होए सन। सो भाई सतीदास जी ये इन्हां दे छोटे भरा सन। ये फारसी के चंगे विद्वान सन। ये लिखारी का काम करते सन, जिन्हां विचों मुख फारसी भाषा विच अनुवाद करना सी। गुरु साहब जी की बाणी उचारते सन ते आप लिख लेंदे सन, पर इस बाणी नूं मुगलों ने अपने कब्जे विच लै लिया सी। भाई सतीदास जी नूं रूह दे नाल बन के अग लगा दित्ती ते जिउंदे ही साड़ दिता सीगा। इन्हां नूं भी मगर सुदी पंचमी दे दिन 1732 विक्रमी ते नवंबर सन 1675 विच शहीद किया गया, फुआरे वाले चौक चांदनी चौक विच। तीसरा भाई दयाला जी। भाई दयाला जी के पिता का नाम भाई दास या कोई माधी दास कहता है। तो इन्हां दी वंशावली हैगी है भाई मुला जी, बल्लू जी, भाई माधी दास जी, भाई दयाला जी। इन्हां दा जन्म पिंड अलीपुर मधुरी बाई जी कुख तो होया सी। भाई दयाला जी भाई मनी सिंह जी के वड्डे भरा सन। पूरब की यात्रा के समय भाई दयाला जी नूं पटने की संगत का मुखी थाप दिता गया सी। भाई दयाला जी ने माता गुजरी जी अते बाल गोविंद जी नूं वापस लैके आनंदपुर साहब आए सन। इन्हां दी शहीदी भी चांदनी चौक गुरु जी के सन्मुख हुई सी। कुच्चा दिलवाली तो पानी लिया के देग विच पाया, उबलती देग विच भाई दयाला जी नूं बिठा के शहीद कर दिता गया। खुद देग तक चल के गए अते वाहिगुरू करते देग विच बैठ गए। आप सिक्खी के उसूलों उत्ते दृढ़ रहंदे हुए मौत नूं खिड़े मत्थे प्रवान कर गए। जिस स्थान से भाई दयाला जी नूं शहीद किया गया सी, कुछ साल पहला उत्थे मैजेस्टिक सिनेमा होया करदा सी, जिहड़ा असीं कदी देखिया सीगा कि हाँ इस सिनेमे वाली जगह ते इन्होंने खरीद के गुरुद्वारे वालियां ने उत्थे हुण म्यूजियम बनाया। उस म्यूजियम ते मेरा नहीं ख्याल कि कोई जांदा होना। मैं भी इन्हां दे नाल लड़ाई कर करके ते जांदी हुंदी सी कि नहीं मैं देखना जरूर है। सो कोशिश करो कि सारे बच्चों नूं म्यूजियम दिखाओ। म्यूजियम दे दिखाण नाल कोई ना कोई असर जरूर हुंदा है। जिस तरह मनदीप भैन जी ने अपनी कुड़ी नूं तैयार किया है, ऐसे तरह तुसीं सारे जाने जिथे भी जाओ म्यूजियम देखो। बाहर के देशों में तो जाके तुसीं म्यूजियम देख लैंदे हो, लेकिन अपने इत्थे देखने लिए पता नहीं तुहानूं की तकलीफ हो जाती है। ना कोई बंगला साहब जाता म्यूजियम, ना कोई शीशगंज गुरुद्वारे पर बिल्कुल सामने इन्ना सोहना ने फर्स्ट ते नाल सैकेंड स्टोरी सारी बनाई हुई है भी तुसीं देखो। तो असीं उपरों ते इन्हां ने कोशिश की सी पुल बनाना, लेकिन सरकार नहीं मन्नी हैगी। सो ये भी हौली हौली चीज़ां हो जाणगियां, पर तुसीं ते अपने बच्चों नूं दस सकदी हैगी हो। तुसीं आपे कोल तुहाडे कोल जाया नहीं जांदा, पौड़ियां उतरिया नहीं जांदा, ते कम से कम बच्चों को कहो तुसीं एक चक्कर ते मारिओ, कदे ना किसी दे उत्ते तां असर हो जाएगा। सो इस तरह इस सिनेमा जो लिखा तो बड़ा दिल खुश होया सीगा कि इत्थे हुण म्यूजियम बनेगा। गुरुद्वारे वालियां ने जगह खरीद ली है ते हुण म्यूजियम बनिया होया है। लेकिन शहीद सिखां दा संस्कार किस तरह किया गया? शहीद होए सिंघां दे मृतक शरीर 2 दिन तक उत्थे ही पए रहे जिथे उन्हां नूं शहीद किया गया सी। फिर दिल्ली के कोतवाल ने शहीदां दीयां लाशां नूं उत्थों चुकवा के एक पासे सुटवा दिता सी। दिल्ली के सिखां ने शहीदां दे शरीर चुक के भोगल के नेड़े जमुना के कंढे ले जाके उन्हां दा संस्कार किया। ये वही जगह है सन 1664 ईस्वी में 8वें पातशाह का संस्कार किया गया सी। बाबा गुरदित्ता जी जो बाबा बुढ़ा जी के वंश विचों सन, उन्हां दा संस्कार इसी जगह ते किया गया सीगा। सो ये इन्हां दी तिन्नां दी शहीदी सीगी जिहड़ी मैं कल परसों पूरी नहीं कर सकी सीगी। हुण थोड़ा जिहा मैनूं टाइम मिलिया तो मैं कहा चलो इन्हां नूं मैं दस ही देवां कि शहीदी इन्हां दी किस तरह होई सीगी। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।